Hello everybody, welcome back to another session on Modern C. We're discussing selection constructs in C language. In the last few sessions, we have focused our attention on writing programs wherein we have been working with single alternative. But that's not always the case. It's not like we have only one alternative. We have multiple alternatives that are there. So today we are going to talk about dual alternative. That means when there are choices that you can make, but then you can make the choice exclusively, either this or that. You are at the crossroad. Now you can either take a left turn or you can take a right turn. There is no way you can take both the turns, isn't it? So here you have to make a choice. I'm at an intersection. Shall I go towards left or shall I go towards right? You are at a T junction. So you cannot go at both the directions. That's not possible. You have to make a choice, and choice is mutually exclusive. That means either I can turn towards right or I can turn towards left. Only one of the path we can follow. That's the basic idea of going for dual alternative if. So if I put across a flowchart, so I say if expression, so we'll try and evaluate that expression. If this expression evaluates to true, I'm saying if this expression evaluates to true, I'm going to follow one course of action. अगर ये expression true है, तो मैं यहाँ से होते ये statement execute करूँगा और आगे बढ़ूँगा. But at the same time, if this expression evaluates to false, then I'm going to follow this course of action. So either I'll follow this course of action or I'll follow this course of action. That means I'll either execute these statements or I'll execute this statement depending on the result of the expression. If the result of the expression is true, that is non-zero, I'll go here. If the result of the expression is false, that means it is zero, then I'll follow this course of action. That means either the statements in code block 1 or the statements in code block 2, or rather either the statement 1 or the statement 2 will get executed depending upon the expression. If this expression evaluates to true, that is non-zero, statement 1 will get executed and 2 will be skipped. If this expression evaluates to false, statement 1 will be skipped and statement 2 will get executed. So either of these two statements will get executed depending on the condition. If that is the kind of scenario, we talk about dual alternative if. Dual means there are two alternatives, either this or that. I could say if I equal to 3, then एक value increment करेंगे, else एक value decrement करेंगे. So although there is a semicolon over here, this entire if else is a single if else construct. Don't feel like semicolon लिखने पर if has got over here and else is something outside. No. So semicolon belongs to this particular simple expression a plus plus, but this entire thing is a single expression. I could write if else in something different ways as well. I said j not equal to 3. In that case, here there was only a single statement that was there. That means अगर condition true है तो ये single statement increment कीजिएगा या decrement कीजिएगा, single statement. If there are more than one statement, then we have to enclose them in braces. Note the braces over here. Opening braces and closing braces. That means I'm saying if this condition is true, this entire code block has to be executed. अगर ये condition false है, then this single statement has to be executed. It can also happen अगर ये condition true है, in that case this entire code block will get executed. If the condition is false, this entire code block will get executed. So when I say entire code block, that means this entire code block is treated as if it's a single expression, single statement. So this compound statement, code block, how do I say it's a code block? Any group of statements that have been enclosed in this pair of braces is called as a code block. This entire code block is treated as a single statement. That means अगर ये statement true है, condition expression true है, then this statement is to be executed. मैं कह रहा statement actually वो एक code block है. This entire code block will get executed depending on whether the condition is true or false. But then I can also negate the expression. If expression was true, say I will say, let's take an example. I want to print whether you are eligible to vote or not. और उसके लिए था आपकी age अगर greater than equal to 18 है, then you can vote. So I'm saying if age greater than 18, you can vote, else you cannot vote. Not मैं उल्टा कर सकता हूँ. If not age greater than 18, okay, I'll say you cannot vote, else you can vote. That means we can write the same thing with this not. यहाँ का जो else था वो यहाँ if में आ जाएगा और यहाँ का जो if था वो else में चला जाएगा if I add a not to the same expression. Now that we have seen the basic construct, let's go ahead with the problem statement and also look at some problem where we have used this if else construct. I'm going to go ahead with the same examples that we had taken last time of sales. I'm just repeating it again. We had seen last time. That means if the sales are greater than equal to something, then I'll give some salary. If the sales are less than something, then I'll give some other salary. Those are the kind of examples that we had discussed last time. I'm going to repeat the same statement once again.
So the problem statement that was given to you was this: accept total sales and calculate the commission to be paid. Commission of 5% of total sales is paid if the sales are greater than or equal to rupees 1 lakh. रुपीज 1 लाख, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा अगर आपका सेल्स है तो यू आर गोइंग टू गिव 5% कमीशन, एंड कमीशन ऑफ 2% ऑफ टोटल सेल्स इज पेड इफ द सेल्स आर लेस देन रुपीज 1 लाख. 1 लाख रुपए से अगर आपका सेल्स कम है देन यू आर गोइंग टू गेट ओनली 2% कमीशन. 1 लाख से ऊपर अगर आपका कमीशन सेल्स ज्यादा है देन यू आर गोइंग टू गेट मोर कमीशन. So you will get 5% commission if your sales are greater than or equal to 1 lakh, and you're going to get 2% commission if your sales are less than rupees 1 lakh. That was a simple problem statement. यानी अगर आपने 1 लाख कमाई की 5,000 रुपए ले जाओ, आपने अगर 50,000 कमाई की 2,000 रुपए ले जाओ, 2% ऑफ द सेल्स 2,000 नहीं आएगा फिर, तो इन दैट केस इट विल बी लाइक 1,000, 2% ऑफ 50,000. तो व्हाट आई विल डू, वी आर डिफाइन अ वेरिएबल कॉल्ड एज सेल्स, जिसमें हम लोग यूजर का टोटल सेल्स स्टोर करेंगे. मैंने कहा स्टोर्स टोटल सेल्स. फिर कमीशन, दैट विल स्टोर द कमीशन टू बी पेड टू द सेल्समैन. हमारा सेल्स का टारगेट कितना है? Our target for sales is 1 lakh. So I define one variable called as 1 lakh, constant integer total sales. So sales target is a constant variable of type integer. Constant मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और वो वैल्यू कितने है तो 1 lakh है. Then I have constant float max commission rate. तो maximum commission rate कितना है? 0.05. That's 5%. Maximum commission rate of 5%. Minimum commission rate कितना है? 0.02. That's 2%. So we have now defined all the required variables. Then I prompt the user, please enter total sales in rupees. Whatever total sales user enters, I need to check whether सही दिया है क्या. I check अगर sales greater than or equal to sales target आपका 1 lakh है. If your sales are greater than or equal to sales target, then I'll calculate commission at the rate of max rate. Else I'll calculate commission at the rate of min rate, and then I'll display the commission. So let's jump start from here, debug the code from here to understand how does it work. अभी पहली बार हम लोग 2 लाख सेल लेते हैं. 2 लाख पे अगर 5% कमीशन ले ले तो 10,000 रुपए आपका कमीशन हो जाएगा. Here we go. We are prompting the user to enter total sales in rupees. हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया total sales in rupees enter करो, and then we're going to enter total sales in rupees. यहाँ आते हैं, we have been prompted to enter total sales in rupees. Total sales in rupees. मैंने कहा मेरा सेल्स 2 लाख है. Let's debug this code once again. We have been prompted to enter total sales. I enter sales as 2 lakhs. 2 lakhs. देखो इस सेल्स में वैल्यू अभी 2 लाख आ चुका है. चेक करते हैं. 2 lakh greater than or equal to 1 lakh. True or false? True. True है. If the condition is true, this statement will get executed. जब यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है तो इन ब्रेसेस की हमें वैसे सिंटैक्टिकली कोई जरूरत नहीं है. बट एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, irrespective there is a single statement or group of statement, we will always use this braces. ये ब्रेसेस हम बताते हैं कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है जब ये कंडीशन ट्रू है. सो आई एम सेइंग इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो हमने चेक किया सेल्स का वैल्यू 20,000 टू 2 लाख से 2 लाख ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख है क्या? हाँ है. अगर है तो यहाँ आ गए कमीशन कैलकुलेट कर लिया. कमीशन कितना आ गया? 10,000 रुपए आ गया. 5,000 5% के हिसाब से, एंड वी डिस्प्ले द कमीशन. सो वी हैव डिस्प्ले द कमीशन दैट इज रुपीज 10,000. ये आपने कमीशन 10,000 है, ये प्रिंट करता है. नाउ some Unicode characters are not supported at times. Since this particular ID is not supporting Unicode characters, let me say rupees. Actually, मैंने वहाँ rupees का symbol डालने की कोशिश की थी. Anyway, that was for greater than 1 lakh. Suppose it so happens, user enter the sales. और ये unlucky salesman था. Unlucky क्यों? Because इसका sale तो हुआ कितना? 99,999, 1 रुपए से कम हो गया. बट रूल इज रूल. तो आपका सेल्स फिलहाल 99,999 है. सेल्स टारगेट आपका 1 लाख है. 99,999 इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख? कंडीशन इज फॉल्स. सो व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल गो टू द एल्स ब्लॉक, एंड व्हेन यू कम टू द एल्स ब्लॉक, वी से
वी आर कैलकुलेटिंग द कमीशन विद द मिनिमम कमीशन रेट, वो आपका 2% है, तो 2% के हिसाब से हमने कमीशन कैलकुलेट किया और प्रिंट कर दिया। सो व्हेन यू कैलकुलेट एट 2% कहता है 1999.98 आपका कमीशन है एंड सो ऑन। सो फॉर 99,998 दिस इज द कमीशन दैट यू आर सपोज्ड टू गेट, 2% ऑफ almost 2,000 rupees आपको मिलने वाले। So you could also rounded up this value and printed it, but that's how it works. Now let me remove this opening bracket and closing bracket. Perfectly all right. ये एक स्टेटमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट्स की वैसे जरूरत नहीं है, but I told you I want you to use all the good practices, and good practices says with if construct very clearly specify which is that statement or group of statement which will get executed when the condition is true. Which is that statement or group of statement that will get executed when the condition is false. ये इंडेंटेशन भी कोई सिंटैक्टिकली कोई जरूरी नहीं है, बट टू मेक द कोड रीडेबल वी शुड राइट इट। अगर आपने ये ऐसे भी लिखा तो भी सी को कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपाइल कर जाएगा, बट पढ़ना मुश्किल होगा ना। तो व्हेन यू राइट अ कोड योर कोड शुड बी रीडेबल। लुक जैसे मैंने लिख रहा हूँ, ये सारे स्टेटमेंट्स मैंने मार्जिन दिया है, इंडेंटेशन किया है, और इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो मैंने इंडेंट किया है, एल्स के अंदर का स्टेटमेंट उसे मैंने इंडेंट मींस लीविंग सम स्पेस ऑन द मार्जिन, सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर कि वो कौन से स्टेटमेंट्स है जिनको एग्जीक्यूट करना है अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स रन द कोड वंस अगेन। अगली बार आपका सेल्स 5 लाख है, यू आर अ फैंटास्टिक सेल्समैन एंड यू मेड अ सेल ऑफ 5 लाख, 1 2 3 4 5, 5 लाख का सेल है तो 25,000 रुपए कमीशन ले जाओगे। ग्रेट, आई रन द प्रोग्राम वंस अगेन, और इस बार आपका सेल्स 10,000 है, यू आर अ न्यूबी, जिंदगी में पहली बार सेल्स कर रहे हैं, तो आपका सेल्स 200 रुपए कमीशन आपका रहेगा एंड सो ऑन। So either this statement or this statement get executed depending on the condition. Condition अगर true है तो ये execute करो, condition अगर false है तो ये execute करो। That's how we execute this particular code. Have you understood this construct called as if else? देवप्पा क्या डाउट है? देवप्पा व्हाट्स द डाउट? देवप्पा हो लेक्चर में या नहीं? Devappa, I will be forced to remove you from the meeting if you don't respond. Let's say our friend goodbye. Now, Asi says कि वो ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए। Let's look at the problem statement. Commission of 5% total sales is paid if the sales are greater than or equal to rupees 1 lakh. तो अगर इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज 1 लाख है तो 5% है, तो यहाँ आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। अगर यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन कहा होता तो आप लेस देन ग्रेटर देन लिखते, बट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई हैव राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इट वेरी क्लियरली सेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज 1 लाख। मुझे याद नहीं मैंने आपको क्या दिया था असाइनमेंट, बट आई थिंक दिस वाज द सेम असाइनमेंट दैट आई शेयर विद यू। बट देन इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू भी डाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू। So that was what the problem statement was demanding. So you and me are nobody. Why am I saying you and me are nobody? Because we just have to fulfill what the problem demands. Okay, we don't have a choice कि मुझे क्या चाहिए, ये choice ही नहीं हमारे पास और आपके पास। You and me just have to fulfill the requirement of the problem. तो ये हो गया आपका if else का first example. Now if you have understood this, let's look at another example. And I'll give you 5 minutes to solve this particular example. जहाँ आप मुझे आइडिया भी बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, and there will be some discussion that we'll have based on your idea. आप जो आइडिया दोगे उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। So the problem statement is something like this. Very simple one line statement, problem statement. Solution कितने लाइन का है देखते हैं, छोटा ही रहेगा। The problem statement is something like this. Accept an alphabet from user and toggle its case. इसका मतलब है अगर इनपुट आ जाता है अपर केस ए, अगर इनपुट आता है अपर केस ए तो आउटपुट आपका आउटपुट चाहिए स्मॉल केस ए। अगर इनपुट आता है स्मॉल केस ए
या स्मॉल केस सी नहीं लेते, क्यू लेते। स्मॉल केस क्यू अगर आपका इनपुट है तो आउटपुट चाहिए अपर केस क्यू। दैट्स हाउ सिंपल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अगर ए आपका इनपुट है तो ए आउटपुट चाहिए, स्मॉल क्यू इनपुट है तो अपर केस क्यू इनपुट चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ यू हैव अ चॉइस that you could just tell me the logic and I'll write the code for you. Come on, anybody. इसमें कितने इनपुट्स आएंगे, कितने वेरिएबल चाहिए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? यस प्लीज सर, वी कैन यूज सी टाइप डॉट एच और हम करो, मुझे प्रोग्राम बताओ, स्टेटमेंट लिखो। दो कंडीशन बनाएंगे हम लोग सर। हाँ। पहला हम लोग इफ अगर हमारा वो जो कैपिटल आर की वैल्यू है, हाँ, वो अगर कैपिटल ए के आगे वाले रहेंगे तो वो कैसे चेक करेंगे? सर हम लोग लिखेंगे ना, इफ वो फंक्शन एक होता है टू अपर और टू लोअर यूज करेंगे दोनों। तो कोड लिखते हैं, चलो कोड लिखते हैं। मैंने कहा हैश इंक्लूड ये तो चाहिए सब। चलो अभी बोलो क्या करो, कितने वेरिएबल डिफाइन करें? चलो बोलो कितने वेरिएबल डिफाइन करें? गूगल सर्च नहीं करना है, एक ही होगा, एक ही होगा। एंड व्हाट नेम शुड आई गिव टू दैट वेरिएबल? कैरेक्टर। क्या नाम दूं? अल्फाबेट। वेरी गुड। तो यूजर ने अल्फाबेट कहा है तो उसे अल्फाबेट देंगे। एंड देन इसके बाद क्या करें? सर हम इनपुट लेंगे। इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए आउटपुट भी तो मैसेज भी देना चाहिए यूजर को। सर प्रिंटफ एंटर So we'll have to prompt the user to enter the data. जब तक हम लोग यूजर को प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, things will not work right. So I'll have to prompt the user saying printf Please enter the alphabet. हमने कहा प्लीज एंटर अल्फाबेट। एंड फिर स्कैनफ क्या लिखेंगे? %C ampersand alphabet. एड्रेस ऑफ अल्फाबेट। हो गया आगे? if नहीं सर, कन्वर्ट करना है तो टी अपर लोअर की कंडीशन है। क्या लिखे? Alphabet equal to is equal to two upper in bracket alphabet into alphabet. if क्या लिखो? अच्छा कन्वर्ट तो है। अल्फाबेट इक्वल टू two upper and in bracket alphabet. आगे। अब ये फंक्शन अगर यूज करना है तो एक हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। ctype.h ctype.h को आपको इंक्लूड करना होगा। आगे सर सेम लोअर के लिए क्या लिखो? रेप कंडीशन डालनी पड़ेगी। क्या लिखो बोलो ना। if alphabet is not क्या लिखो? सर हमको सिर्फ अपर केस कन्वर्जन टू लोअर केस करने का है। अपर केस को लोअर में, लोअर केस तो अपर केस भी होगा सर। तो लोअर तो फिर यहाँ पे वो कंडीशन डालनी पड़ेगी सर। टी अपर है ना तो टी लोअर भी डालने पड़ेगा। तो लिखो क्या बताओ ना, वही तो बताओ। आई अंडरस्टैंड कंडीशन लिखी हुई है, क्या लिखोगे? अल्फाबेट इक्वल टू लोअर इन ब्रैकेट अल्फाबेट। क्या लिखो? इफ नहीं सर। नो सर इफ नहीं, जैसे टू अपर के लिए लिखा सेम एज लोअर के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ दोबारा लोअर के लिए करेंगे, सिर्फ यहाँ लिखूंगा टू अपर की जगह टू लोअर। आगे अब कंडीशन हो किसी क्या कंडीशन है? कंडीशन की जरूरत है? नहीं सर इतना ही बस होगा। नहीं सर इतना ही बस होगा। आउटपुट नहीं दिखाया मगर
आउटपुट बोलो। प्रिंट अप लिखना अच्छा, पड़ेगा। क्या लिखूं? उसके बाद your toggled alphabet is alphabet percent C. क्या है? Address alphabet. Address, Address नहीं, sorry. Address नहीं. Only alphabet. alphabet, and that will work, isn't it? Yes. Yes. Yes or no? काम करेगा या नहीं Yes, अभी? sir. Everybody who feels it will not work? करेगा. करेगा। करेगा sir. और कोई है जिसको लगता है नहीं करेगा? करे वाले 3 लोग हैं, तो कितने लोग हैं जिनको? Give me a feedback, yes or no? How many feel it will work and how many feel it will not work? Yes या no? सर एक मिनट प्रोग्राम देखा फीडबैक ही नहीं। फीडबैक दिखाता हूँ, मुझे फीडबैक चाहिए। क्लिक ऑन yes or no. करेगा. यस सर देगा। फीडबैक दो yes और no पे मुझे देखना है कितने लोग yes कह रहे हैं, कितने लोग no कह रहे हैं। जो रिस्पॉन्ड नहीं करे वो घर जाइए। आपको कोई तो स्टैंड लेना होगा, yes or no. You have to say something. You cannot just see passive observer. देवप्पा, yes or no? Let's see whether you are right. And it looks like you have got this thing right. लगता तो है कि आपने सही किया है। I enter capital A. कहता है a toggle alphabet is A. जरा A को कोट्स पे प्रिंट करते हैं, एस्केप करके स्लैश कोट्स, ये अच्छा रहेगा। The toggle alphabet is this. So next time I enter capital Q. कहता है the toggle alphabet is small case q. Perfect? Yes or no? यस सर। अरे but that's only 50% of the story. ये हो गया। अब जरा ये भी चेक करके देखते हैं। I enter character that is small case q. और कहता है toggle alphabet is small case q. I enter character as small case r. कहता है toggle character is small case r. यानी क्या हो रहा है यहाँ? गलती क्या की आपने? You converted this character, got its upper case. फिर यहाँ अपर केस को आपने दोबारा लोअर केस में कन्वर्ट किया, तो हमेशा ही आंसर लोअर केस में आएगा ना। yes, समझो, sir. मैंने लोअर केस ए दे दिया, आपने इसे कन्वर्ट किया टू अपर केस। फिर जब अपर केस ए यहाँ सप्लाई करोगे, दैट विल अगेन गेट कन्वर्टेड टू लोअर केस, एंड अंडर व्हाटएवर सिनेरियो यू डू इट, यू विल ऑलवेज गेट लोअर केस कैरेक्टर। दोनों कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब जब रन लाउडर। करेंगे दोनों कंडीशन अप्लाई होगी अगर आप। हाँ, दोनों कंडीशन नहीं, दोनों स्टेटमेंट्स अप्लाई होंगे। हाँ यस, दोनों नाउ व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर अप्लाइड, पहला ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। पहले स्टेटमेंट ने उसे अपर केस में कन्वर्ट किया और ये जो अल्फाबेट था वही आपने यहाँ सप्लाई किया। नाउ दैट इज कन्वर्टेड टू लोअर, यानी पहला स्टेटमेंट क्या था उससे कोई मतलब ही नहीं है। एवरी कैरेक्टर दैट यू एंटर्ड इज नाउ कन्वर्टेड टू लोअर केस, यानी आउटपुट आपका हमेशा ही लोअर केस में आएगा। यस सर। सो दिस वाज नॉट राइट। तो क्या करें सर इफ करके ये ऊपर लिखो और ये नीचे वो Very अपर correct. वाला और लोअर वेरी वाला। करेक्ट, यानी एक और फिर जाएगा एल्स में और एक आएगा हाँ। इफ में। यस तो पॉइंट है कंडीशन क्या लिखे, दैट्स द क्वेश्चन। अगर कंडीशन कुछ है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करो। लॉजिकली बताइए, मैं सिंटैक्स बताता हूँ। अगर कंडीशन ये है तो इसे अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर अगर आज की वैल्यू 65 से ज्यादा होगी। वेरी करेक्ट, यानी आई कैन और डायरेक्टली से वेरी करेक्ट, आई कैन से अल्फाबेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। अगर अल्फाबेट ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है ALPHABET क्या गलत हुआ? लेट मी बिल्ड दिस पर्टिकुलर कोड वंस अगेन। देखते कभी अगर समझ में नहीं आता ना, कंपाइल करके देखेंगे एरर कहाँ है। ओपनिंग ब्रैकेट बोल रहा है एरर एक्सपेक्टेड
ब्रैकेट्स, अरे यहाँ ब्रैकेट्स डालना भूलिए इफ में, इफ अल्फाबेट ग्रेटर इक्वल टू 65 ये भूलिए, अब यहाँ ब्रैकेट डाल दिया तो सॉल्व हो गया। तो समटाइम्स वी डोंट रिकलेक्ट व्हाट द प्रॉब्लम इज, बेस्ट इज कंपाइल करो और देखो, कंपाइलर इमीडिएटली बता देता आपने क्या गलती की, एंड दैट्स परफेक्ट। So let's run this particular code. सर ये गलत है। सर वो ग्रेटर देन 97 रहेगा तो यूज कीजिए वो। तो ये देखते पहले मैंने एंटर किया अल्फाबेट लाइक कैपिटल ए, इसका वैल्यू 65 है, तो अगर 65 ग्रेटर इक्वल टू 65 क्या हाँ है, तो आपने कहा इसे अपर केस में कन्वर्ट करो। आपने कहा अगर वो अपर केस है, ग्रेटर इक्वल 65 मतलब अपर केस है, तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करो। दैट्स रॉन्ग। क्या लिखो? सर वो ग्रेटर देन 97 कर दीजिए। ग्रेटर देन 97 चाहिए था। दैट्स वेरी गुड। यानी 97 हैपेंस टू बी द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल केसेस। यस सर। नॉट मेनी रिमेंबर, आपको याद है, अच्छी बात है। तो अल्फाबेट का वैल्यू है, अगर उसका ASCII कोड ग्रेटर देन 97 है, और ये देखने के लिए यहाँ से हम लोग ट्रेस करते हैं ताकि आप ये देख भी पाएंगे। अगर मैं एंटर करता हूँ स्मॉल केस बी, इफ आई एंटर स्मॉल केस बी, here we are and I am entering small case b, watch it very carefully। मैंने एंटर किया, सॉरी स्मॉल केस बी, मैंने एंटर स्मॉल केस बी, जरा देखो तो इसमें क्या स्टोर है, क्या दिखा दे रहा है? 98। फिर चेक करेंगे 98 ग्रेटर इक्वल टू 97 है क्या? यस सर ट्रू। है। अगर ट्रू है तो अंदर आए, उसे कन्वर्ट किया इनटू अपर केस, और बाहर आए एल्स में से, और डायरेक्टली प्रिंट किया अपर केस का लोअर केस इक्वल है, लोअर केस का अपर केस है। द टॉगल अल्फाबेट इज अपर केस बी। फैंटास्टिक, ये आ गया। अब उल्टा करके देखते हैं। उल्टा मतलब स्मॉल केस अल्फाबेट की जगह अपर केस एंटर हो जाते हैं। आई एंटर अपर केस बी, मैंने एंटर किया अपर केस बी। अब यहाँ चेक करते हैं, अल्फाबेट में आपने एंटर किया है, अरे रन हो गया डायरेक्टली। अब दोबारा डिबग करते हैं। वी आर हियर लाइन नंबर 12 पे हम लोग, एंड व्हेन यू आर एट लाइन नंबर 12 आई एंटर अपर केस बी। जब मैंने अपर केस बी एंटर कर दिया, इसका वैल्यू क्या देखो? 66 क्या 66 ग्रेटर इक्वल 97 है क्या? false। फॉल्स है, यानी एल्स में गए और आपने क्या टू लोअर, यानी उस कैरेक्टर का लोअर केस ले लिया। फैंटास्टिक, एंड नाउ इट इज प्रिंटिंग द रिजल्ट। याद है टॉगल कैरेक्टर इज बी, सो ऑब्वियसली दिस इज वर्किंग राइट नाउ। अपर केस बी दे दिया तो लोअर केस बी आउटपुट आ रहा है आपका, सो यू हैव मेड इट वर्क। So let's run this code 2-3 times to see whether it works right or not। दो चार और एक कैरेक्टर्स के लिए अल्फाबेट के लिए करते हैं। आपने दिया कैपिटल एच, कहता है टॉगल अल्फाबेट स्मॉल के एच, ग्रेट। और एक बार रन करते हैं। आपने कहा स्मॉल केस ई, अपर केस ई आ रहा है, गुड। और एक बार करके देखते हैं। आपने कहा अपर केस आर, स्मॉल केस आ रहा है, इट्स वर्किंग राइट। व्हाट इज एवरीबॉडी? हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी? यानी हमने दो फंक्शन देखे थे, टू अपर और टू लोअर, उनका सही इस्तेमाल किया है। यानी क्या कह रहे हैं, अगर अल्फाबेट का ASCII वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 97 है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करो, अदरवाइज उसे लोअर केस में कन्वर्ट करो, एंड सो ऑन। ओके, 97 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज स्मॉल केस 65 से शुरू होता है, अपर केस 65 से शुरू हो रहा है। तो अगर स्मॉल केस है यानी 97 से आगे है, स्मॉल केस ए के आगे है, तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज उसे अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, एंड सो ऑन। हाँ, सर इसको और क्लीन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अगर किसी ने इनपुट इंटीजर डाल दिया, जैसे 1 2 ये भी कैरेक्टर होता है, हाँ। तो ले लेगा इनपुट में। हाँ, तो इसको क्लीन करने के लिए कुछ क्या करना होगा? सर लिख देंगे कि 65 से नीचे गया हाँ, तो वो प्रिंटर दिखा दे स्टैंडर्ड एरर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो प्रॉब्लम ऐसा है, अगर मैंने एंटर किया 0, 0 का वैल्यू क्या था? बोलिए, ASCII वैल्यू 0, 48। वेरी गुड, इट वाज 48। तो ये कह रहा है टॉगल कैरेक्टर 0, अरे ये गलत हो रहा है। तो यहाँ हमें वैलिडेशन करना जरूरी था, बिकॉज अल्फाबेट ए है अपर केस, जिसका सबसे छोटा ASCII वैल्यू 65 है, तो वही हमें यूज करना चाहिए था। तो यहाँ हमें वैलिडेशन करना चाहिए था। क्या वैलिडेशन करोगे? इफ सर अल्फाबेट इज
लेस देन इक्वल्स टू 65। इक्वल टू बी, यानी ए को भी नहीं चाहिए। नहीं सर, सिर्फ लेस देन 65। अगर लेस देन 65 आता है तो हम लोग क्या करेंगे? एफ प्रिंट एफ एफ प्रिंट स्टैंडर्ड एरर। हाँ, एफ प्रिंट एफ, करेक्ट, वेरी गुड। एफ प्रिंट एफ और कहेंगे stderr, क्या एरर मैसेज देंगे? इनकरेक्ट सर- अल्फाबेट। ना एंटर, Your enter alphabet is incorrect. ऐसा लिखेंगे पर्सन सी इज नॉट एन अल्फाबेट। अल्फाबेट। आपने जो एंटर किया है वो अल्फाबेट नहीं है। और कुछ करना बाकी है? इसको कौन से अल्फाबेट है? नहीं, क्या आपको इसके आगे प्रोग्राम कंटिन्यू करना है? एग्जिट सर, कौन से टर्मिनेट एग्जिट Exit एग्जिट failure। फंक्शन यूज करने के लिए कौन सा हेडर फाइल एग्जिट फेल्यूर failure? हेडर फाइल कौन सा लेंगे? stdlib वेरी गुड, वेरी गुड। Like htdlib.h का इस्तेमाल करेंगे, htdlib.h, और इसमें क्या पैरामीटर पास करेंगे? एग्जिट फेल्यूर। exit failure. एग्जिट फेलियर, वेरी गुड। तो हमारे पास कई सारे हैं, उसमें से हम लोग एग्जिट फेलियर पास करेंगे, दैट्स द थिंग। तो यहाँ एग्जिट सक्सेस भी ले सकते हैं। अगर वो हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया अगर आपने अभी, तो यहाँ एग्जिट सक्सेस, यहाँ तक गए तो एग्जिट सक्सेस। दैट्स अ वेरी इंप्रूव्ड काइंड ऑफ कोड दैट यू हैव रिटन, वेरी गुड। अब इसमें वैलिडेशन भी हुआ है, इनपुट वैलिडेशन भी हुआ है, और अगर इनपुट सही है तो ही काम करेगा। तो लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स गिव द इनपुट वंस अगेन। इस बार 0 की जगह मैं 9 देता हूँ, तो मैंने दे दिया 9। कहता है L इज नॉट एन अल्फाबेट। ओके, L क्या? आपने तो 9 दिया है, करेक्ट? आपने तो 9 दिया था अल्फा इसमें, तो वॉट एवर कैरेक्टर दैट यू हैव एंटर्ड वो डिस्प्ले होना जाना चाहिए था। तो यहाँ हमने प्रिंट ही नहीं किया, कॉमा गार्बेज प्रिंट हुआ था अभी, L कहीं से आ गया गार्बेज। ओके, अभी मैं कहूँगा अल्फाबेट इज नॉट एन अल्फाबेट। लेट्स डू दैट। दिस टाइम अराउंड आई एंटर इनपुट एज 9। देखा है, देखो रेड कलर में 9 इज नॉट एन अल्फाबेट। क्वेश्चन क्या था? एंटर अल्फाबेट। अब आपने कुछ एंटर कर लिया तो 9 इज नॉट एन अल्फाबेट। ग्रेट, सो इट्स अ फैंटास्टिक कोड दैट वी हैव रिटन। लेट्स रन दैट। इतना ही नहीं, अगर मैं हैश देता हूँ तो कहता है हैश इज नॉट एन अल्फाबेट बिकॉज हैश का कोड 64 है, तो 64 इज नॉट एन अल्फाबेट, सो दैट्स वर्किंग फाइन, इजंट इट? सो दिस वाज सम इनपुट वैलिडेशन दैट वाज बीन डन। 65 क्यों लिया यहाँ? सर वो कैपिटल ए से अल्फाबेट के लिए स्टार्टिंग 65 से। अल्फाबेट के लिए स्टार्टिंग 65 है। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट अपर केस ए। A की 65 बार, उसके बाद B की 66। करेक्ट, दैट मींस अगर आप इसकी बात करते हैं, अल्फाबेट्स की बात करते हैं, द कैरेक्टर स्टार्ट्स विद अपर केस ए। अपर केस से अपना कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। नाउ लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन टू सी क्या आपका लॉजिक सही है क्या, वो जरा और भी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेट्स ट्राई एंड क्रॉस चेक। ओके, लेट्स क्रॉस चेक। तो अगर आप इसे रन करते हो, वी क्रॉस चेक इट, इट वाज वर्किंग राइट। कैसे? कैपिटल ए दे दिया तो स्मॉल केस ई आ रहा है, स्मॉल केस ए दे दिया अपर केस ई आ रहा है। ग्रेट है। नंबर 5 दे दिया तो बोल रहा है इट्स नॉट एन अल्फाबेट। लेट्स एंटर सम मोर कैरेक्टर। आई एंटर ओपन करी ब्रेसेस, तो कहता है टॉगल अल्फाबेट इज ओपन केस। क्या ये अल्फाबेट है क्या? Yes, sir. No. I run it once again. I enter some other character like closing curly braces. Get the toggle character is closing curly braces. So what has happened is you correctly identified ये यहाँ से start होता है, but you did not realize ये अगर 97 से start हो रहा है और ये 65 है, तो दोनों में difference कितना है? 26. अरे काउंट करो। 26 आता है, 97 minus 65 26 आता है। 32 सर, कितना? 32, और इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26, 26। यानी कितने बीच में आ गए नए? बीच में 5। 5 आ गए। देखना है उन 5 को, ये आपका अपर केस जेड यहाँ खत्म हो गया, तो उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस, स्लैश, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, कैरेक्टर, डैश, है सारे कोड्स, फिर आपका एबीसीडी। यस सर। करेक्ट? तो सिर्फ 65 लेके नहीं चलेगा, क्या करना होगा?
और उसके आगे दिखाओ। और अगर इस प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन कर लिया एंड ये अभी मैंने ओपनिंग के लिए बेसिस दिया था, वो 123 था, Z 122 पे खत्म हुआ है, ये 123 है, इसके लिए भी यानी इन ये 122 से लेके 123 से लेके 127 के लिए गलत काम करेगा और 91 से लेके 96 के लिए का गलत काम करेगा। यानी आपके पास कम से कम 11 कैरेक्टर्स है, बाकी सबके लिए सही काम करेगा, बट 11 ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके लिए गलत काम करेगा। तो ये कंडीशन कैसे रिवाइज कर पाएंगे? सर हम स्कैन सेट यूज कर सकते हैं। स्कैन सेट में कर सकते हैं, क्या लिखूं? A to Z कैपिटल और A to Z मैंने कहा A डैश Z कॉमा कैपिटल डैश ए Z लिया, तो यहाँ ये लिखने की जरूरत है, C नहीं लिखा। तो मैंने कहा कोई भी अल्फाबेट एंटर करो, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स। आई एंटर स्मॉल के से अपर के से आ गया, ग्रेट। आई एंटर स्मॉल केस आर, अपर केस आ रहा है। आई एंटर अपर केस आर, देखते हैं स्मॉल केस आ रहा है, वेरी गुड। पर अपना दिक्कत कहीं और था। अगर मैंने एंटर किया 5, कहता है स्पेस इज नॉट एन अल्फाबेट। क्या मैंने स्पेस एंटर किया है? नाइस सर। मैंने तो 5 एंटर किया था। स्कैन सेट हैज फेल्ड because this scan set can read only क्या रीड कर रहा है? ओनली अल्फाबेट। ओनली तो अगर अल्फाबेट के अलावा कुछ एंटर किया तो ये फेल हुआ था। तो जो फेल हुआ था उसका क्या चेक करोगे? एंड चेक करना है, अगर आपको ये फेल हुआ था तो इसका वैल्यू, रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करके देख सकते थे। इस फ्लैग में अगर वैल्यू 0 आ जाता है, दैट मींस स्कैनफ हैज फेल्ड, ऐसा भी चेक कर सकता है। तो यहाँ ये दिक्कत है, ये स्कैनफ फेल हो रहा है। अगर आप अल्फाबेट्स एंटर नहीं करते हो तो इट विल फेल। यानी फॉर एनी अदर कैरेक्टर विच इज नॉट एन अल्फाबेट, इट विल नॉट प्रिंट दैट कैरेक्टर जो आपने एंटर किया है। प्रोग्राम रुक जाएगा जरूर, वो पक्का है, बट ये प्रिंट करेगा स्पेस इज नॉट अल्फाबेट, ऐसा कुछ तो प्रिंट करेगा। बट जो आपने एंटर किया हुआ कैरेक्टर है 9 ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, वो अल्फाबेट नहीं है, ये बताना जरूरी था। लाइकवाइज अगर कल जाके मैंने कहा हैश या डॉलर, कहता है स्पेस इज नॉट अल्फाबेट। स्पेस कहाँ है? एंटर नहीं किया रे मैंने तो डॉलर एंटर किया था। तो दिस वाज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सर सर और एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मतलब वहाँ पे 2 कंडीशन डाल के, डॉलर 2 कंडीशन इफ स्टेटमेंट में डाल के वो कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन 91 एंड देन बोलो ना, फिर वही 97। तो बोलो, वही तो चाहिए। कंडीशन क्या लिखे यार? ये गलत इनपुट है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग? सर हम लोग इंटरवल में लिख सकते क्या दो, जैसे इट शुड बी ग्रेटर देन आपने दो 65। कंडीशन कैसे ज्वाइन करना है नहीं देखा आपने इसके पहले? सर एंड एंड देखा है। एंड और यूज परसेंट करते करके। हैं। तो बताओ अल्फाबेट नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे? सर रेंज बोलो ना, वही तो, रेंज कैसे देना है? सर ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 90। लाउडर। ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 90। तो इन दैट केस वो अल्फाबेट है या नहीं है? वो वो अल्फाबेट है। हाँ। आपको नहीं है तो फेल करना है मैं ना। कह रहा था और एक इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखो? लाइन नंबर 17 के बाद, 17 के बाद लाइन नंबर 18 पे। उसमें और एक इफ स्टेटमेंट अरे कहाँ? मेरा हम लिख क्वेश्चन है सकते कहाँ हैं कहाँ उस कहाँ? कंडीशन। अरे वही क्वेश्चन है मेरा, कहाँ लिखो बताओ। सॉरी 18 के बाद, 19 पे। 18 के बाद। अरे यानी 19 हाँ ही आएगा ना। 19 पे। हाँ, क्या लिखो? हाँ if alphabet greater than 91, तो क्या? and वो डबल एंड And less than 97, alphabet less than 97। इससे आप क्या चेक करें? so ये अल्फाबेट नहीं है। ये अल्फाबेट नहीं है, तो ये वैलिडेशन में क्यों नहीं करे? फिर यहाँ क्यों करे नीचे? मतलब ये अदर साइंस है ऐसे। 123 के आगे भी नहीं है अल्फाबेट्स, उसका क्या करोगे? इनका क्या करोगे? ये भी तो है ना, या नहीं? है 123 से लेके 127 तक। तो कंडीशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, एंड तो लिखना होगा।
और आपको चाहिए अपना लॉजिक क्या है, अगर इनपुट गलत है तो प्रोग्राम को यहाँ रोक देना है। तो इनपुट गलत है, इसके लिए यहाँ कंडीशन क्या डालोगे बताओ। बोलो बोलो बोलो। सर और कंडीशन डाल के और फंक्शन यूज करके बोलो तीन ना, कंडीशन क्या लिखना है, कंडीशन डाल देंगे। एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट बोलो क्या लिखो, लाइन नंबर 15 पे क्या लिखूंगा। What is more सर that I लाइन should नंबर write? 15 पे और डाल के और यहाँ अल्फाबेट ग्रेटर देन 123 अल्फाबेट ग्रेटर देन 123। 123। गुड। ये अगर लॉजिक लगाया आपने तो आपने इनको हैंडल कर लिया, ये लास्ट वाले इनको हैंडल कर लिया, आपने इन सबको हैंडल किया, 64 के ऊपर के सबको हैंडल किया। पर इसका क्या, ये 91, 92, 93, 94, 95, 96 का क्या, इसको कौन हैंडल करेगा। अब आपने लेस देन और 65, हाँ और एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। और एक दो कंडीशन है, क्या हाँ। डालोगे। और ये आए और और फिर से अल्फाबेट अल्फाबेट लेस देन रेंज क्या थी वो, चार्ट चार्ट दिखाओ ना, एक मिनट रेंज। 91 क्या लिखो, अल्फाबेट व्हाट, ग्रेटर देन 90 90 91 हो गया। yes तो अगर अल्फाबेट ग्रेटर देन 91 है तो नॉट एन अल्फाबेट, तो स्मॉल केस ए तो सर 97 है। एंड लेस देन 97। एंड अल्फाबेट लेस देन 97, यानी आपको मल्टीपल कंडीशन डालने होंगे। ये जैसे आपने एंड सोचा है वैसे वहां भी एक एंड सोचना होगा। तो ये हो गया आपका किसके लिए, वो बीच वाले के लिए। अगर अल्फाबेट ग्रेटर देन 91 एंड लेस देन 97 है, उसके बीच में है, या फिर वो लेस देन 65 है, या फिर वो ग्रेटर देन 123 है, तो वो अल्फाबेट नहीं है। नाउ यू हैव रिटन अ मच बेटर कोड दैट इज देयर। लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड टू सी does it take care of all the things. I enter 4, कहता है 4 is not an alphabet, perfect. I enter closing bracket, कहता है toggle character is closing bracket, ये तो प्रॉब्लम आ गया है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट 91 था, तो 91 के लिए तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। 91 लेस देन 123 है क्या, 65 है क्या, नो सर, फॉल्स है। 91 ग्रेटर देन 123 है क्या, फॉल्स सर, फॉल्स है। 91 ग्रेटर देन 91 है क्या, फॉल्स, फॉल्स। एंड 91 लेस देन 97 है क्या, ट्रू है, ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स सर, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या हुआ, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो ये पूरा फॉल्स हो गया है। डायरेक्टली आ गया और कन्वर्ट करते हुए कहा ये गलत है, तो ये कंडीशन अभी भी गलत है। ये वाला मेरे हिसाब से सही है, इस साइड कुछ तो गलत है। बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे कंडीशन। एंड और चाहिए, सही जगह से चाहिए। बोलो जल्दी, 91 एंड चाहिए था या और चाहिए था, वहाँ पे एंड और होता तो और होगा। तो अल्फाबेट ग्रेटर देन 91 और अल्फाबेट लेस देन 99 97। तो अगर मैं बी लेता हूँ 98 कैपिटल बी, तो और में तो ये ट्रू रहेगा तो अंदर चला जाएगा, तो सही के लिए भी फेल हो जाएगा। सर 123 के बाद जो है वहाँ पे एंड, हाँ, तो यहाँ लिखूँ एंड। मगर अपना 91 का तो हैंडल करो पहले। 91 के लिए कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ये 91 जो अल्फाबेट नहीं है
अगर अल्फाबेट नहीं है तो अंदर जाके फेल होना चाहिए, उतना तो करो पहले। ये 91 ग्रेटर देन 91 फॉल्स, 91 लेस देन 99 97 ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो ये यहाँ जा ही नहीं रहा है, नीचे जा रहा है, कम से कम उसके लिए तो फेल करो पहले। वो 91 to 97 आप सही हैंडल नहीं करते। वो लगाओ दिमाग पे 90 होगा। इंडियन यूज करो Pardon? इंडियन यूज करो कुठे आहे enter? सर एक मिनिट चार्ट दाखवा ना. तुमचा प्रॉब्लेम हा 91 to 96 वाला आहे. ते असतील तर we need to stop. If it is between 91 to 96, we need to stop. Others who are there, passive observers, जरा बताइए, बात करो. 91 की जगह पे 90 होगा. यहाँ greater than equal to 91 करें. 91 से आगे स्टॉप करना है ना, greater than or equal to 91 है कि नहीं? greater than 91 कहा तो 92 से स्टार्ट कर रहा है, 91 के लिए फेल हो रहा था. अब मैंने कहा greater than equal to 91. That was a small mistake that was done. Let's see now. अगर मैंने दिया closing bracket, कहता है it's not an alphabet. मैंने कहा opening bracket, कहता है not an alphabet. मैंने 123 वाला कैरेक्टर दिया, curly braces, कहता है not an alphabet. 65 से नीचे देते हैं हम लोग 4, कहता है not an alphabet. That's a perfect code that we have written now. And then when I enter uppercase R, कहता है small case R. And now if I write small case R, कहता है uppercase R. So that's a perfect condition example that we have written. This is a perfect code to write. Have you understood this condition now? ये condition क्या check कर रहा है? Whether it is alphabet or not. Whether it's an alphabet or not. Whether it is an alphabet or not, or whether it is not an alphabet check कर रहा है. It is checking whether it is Not an alphabet. अगर वो alphabet नहीं है, तो I'm going to stop over here by writing this statement. And अगर वो upper case है, lower case है, तो उसे upper case में convert करेंगे. Otherwise lower case में convert करेंगे. Okay. Now my question to you all is, ये 123 क्या था? Small z. क्या? Lower case z. लोअर केस z. अरे किसे नंबर्स याद रहने वाले हैं? मैं पहले भी कहा था प्रोग्राम में ना नंबर्स नहीं होने चाहिए. तो Define अगर ये initialize. नंबर a है, 65 है ना, तो 65 है तो आप डायरेक्टली a डालो ना यहाँ. क्यों झंझट में पड़ रहे हैं नंबर्स के? नंबर्स मेक द कोड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आई बेट ये किसी को याद ही नहीं था एक सिंबल्स क्या है. ये 97 to 97 रख दो चाहे तो, और यहाँ लिखो अल्फाबेट ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल केस ए. अगर वो स्मॉल केस ए से बड़ा है तो इज इट नॉट मोर रीडेबल देन व्हाट यू आर राइटिंग अर्लियर? Yes sir. और यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन कैपिटल जेड. बताइए अभी, और यहाँ क्या लिखूं? लेस देन Small a. Small a. स्मॉल ए. ना मुझे बताइए ये पढ़ना आसान है या वो जो नंबर्स के खेल रहे थे आप वो आसान है? Yeah. So this becomes so very easy to read. कहता ए से छोटा कोई कैरेक्टर है या अपर केस जेड से बड़ा कोई कैरेक्टर है या बिटवीन अपर केस जेड टू लोअर केस जेड के अंदर के बीच वाला कोई कैरेक्टर है तो फेल करो. अगर अल्फाबेट लोअर केस ए से बड़ा है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करो, अदरवाइज लोअर केस में कन्वर्ट करो. ओके, सो दैट्स मच बेटर वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम. सो वी हैव इंप्रूव्ड ऑन द कोड सिग्निफिकेंटली और काम तो बराबर करेगा. 4 इज नॉट एन अल्फाबेट. ये 65 के नीचे वाली लिया, ये बीच वाले लिए और एक आगे वाले लेता हूँ. सब कुछ सही काम कर रहा है. वैलिडेशन. और अभी वैलिड डेटा के लिए लेते हैं. अपर केस ए लिया तो स्मॉल केस सी, और स्मॉल केस ए ले लिया तो अपर केस सी. Isn't it better? But look at the kind of effort that you have to put in. आपने जो शुरू किया था ये 2 स्टेटमेंट लिखते हुए सिर्फ, और आप भी अभी जो कोड लिखा है हाउ मच डिफरेंट इट इज. यानी कोडिंग कुछ नहीं होता है, शुरू करना होता है. जो दिमाग में आए लिखो, रन करके देखो. तो इफ यू आर फीलिंग अबाउट अरे आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट राइट द प्रोग्राम, मशीन पे लिखो. जो दिमाग में आए लिखो, रन करो, देखो आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर रहेगा. टेस्टिंग का अप्रोच रखो. बी अ टेस्टर. आपका कोड खुद ही टेस्ट करो. चेक वेदर इट इज फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट. If it fulfills your requirement, well and good. If it doesn't fulfill the requirement,
मेक द नेसेसरी चेंजेस सो दैट जो आपके दिमाग में अभी आइडिया आ रहा है उसे आप फुलफिल करने के लिए कोड चेंजेस करते रहो. इज द मशीन गोना स्क्रीम एट यू कि नॉनसेंस, कितनी देर ये गलत जा रहा है? इज द मशीन गोना स्क्रीम एट यू? गलती से मैं आई में स्क्रीम एट यू. द मशीन इज नेवर गोना स्क्रीम एट यू. आप 10 दिन तक लगातार गलत कोड रन करते रहोगे, मशीन विल जस्ट इट्स कंप्यूटर. वन थिंग गुड अबाउट इट इज इट डजंट गेट टायर्ड लाइक ह्यूमंस एंड यू एंड मी, एंड इट डजंट हैव इमोशंस. जो कोड लिखोगे वो रन करेगा, एरर है तो एरर बताएगा, विल जस्ट कीप ऑन रनिंग. सो द बेस्ट वे इज व्हेन आई से राइट द प्रोग्राम. वो गलत हो तो भी चलेगा बट प्रोग्राम लिखो. इसके पीछे एक ही वजह है. सो व्हेन यू राइट द प्रोग्राम, राइट और रॉन्ग, you learn something. There is something learning that will always happen. प्रोग्राम गलत है तो भी लर्निंग है, प्रोग्राम सही आया तो भी लर्निंग है, बट देन प्रोग्राम लिखना उसके लिए जरूरी है. So when you don't write programs, one who doesn't write program doesn't commit any mistake, and one who doesn't commit any mistake never learns to write a program. हाँ ऐसा है. तो मिस्टेक्स तो होने वाले हैं, और एक कोड ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करते हुए आपने तो 4 लाइन में खत्म किया था, प्रिंटफ स्कैनफ और ये लाइन और ये लाइन, और डायरेक्टली प्रिंटफ में आपने तो कोड को खत्म कर दिया था. बट नाउ व्हेन यू लुक एट द कोड इज वेरी डिफरेंट देन वेयर वी स्टार्टेड ऑफ इट. जहां से आपने शुरू किया और जहां आए हो है कि कोई रिलेशन. सच अ डिफरेंट कोड इज व्हाट यू हैव डन. यस और नो? हैव यू अंडरस्टूड दिस? फीडबैक दो, ये समझ में आया नहीं आया, कैसे स्लोली हम लोग इवॉल्व करते गए. पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट वन शुड हैव टू बी अ सक्सेसफुल डेवलपर. पेशेंस. कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं, लगा रहूंगा, कोशिश करूंगा, आएगा किसी दिन तो आएगा. प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है. स्वप्निल, व्हाट्स द डाउट? स्वप्निल रेस्पॉन्ड मतलब टिक करो ना, समझ में आया था. Now I appreciate you for one thing, that you struggled but you did not give up and you have written the code. You have written the code, and such a code that is running perfect. ये perfect code लिखा आपने, ये सही रन कर रहा है under all सारे cases हमने चेक करके देखे. It was giving you the right answer that we actually expected. But then when I see such kind of codes, it immediately gives me an idea. क्या आइडिया देता है मुझे? कि आपने असाइनमेंट नहीं किया है. यानी मैंने आपको कहा था हेडर फाइल ctype.h एक्सप्लोर करना है. ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपने वो हेडर फाइल एक्सप्लोर ही नहीं किया. आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज आप क्या सोचते हो, क्या आइडियाज देते हो, यही मुझे इमीडिएटली बताएगा आपने क्या किया है एंड क्या नहीं किया है. आप में से एक भी बंदा नहीं है जिसने ctype.h जो मैंने असाइनमेंट कहा था जाके देखो वहाँ एक फंक्शन, उस फंक्शन का आगे एक लाइन में लिखो ये फंक्शन क्या करता है. एक ने भी नहीं किया है. अगर किया होता ना the things would have been different. You would not write such a poor code. Although it is correct, मैंने कहा एक अप्रिशिएट करता हूँ, कुछ तो जुगाड़ करके आपने ले आए. प्रोग्राम करेक्ट है इसलिए वो एक्सेप्टेबल है, ये दिमाग में से निकाल दो. ये करेक्ट है, बट अगर कोई ऐसा कोड दिखाता है ये कचरे के डब्बे में डालेंगे. although it is correct code, although it is working under all circumstances, still it's a poorly designed code. It's a very poor design. Had you explored, अगर आपने मैंने जो कहा है अगर वो देखा होता ctype.h, then your design would have been beautiful. कोई गधा भी उस कोड को देखेगा ना समझ पाएगा. Here half of the people will struggle to understand ये कंडीशन. अभी अभी जो क्लास में बैठे हैं ना उनमें से आधे लोगों को एक कंडीशन समझ में आने वाला नहीं है. क्या लिखा है लेस देन a और greater than z और this, it's very difficult to understand. Had you explored header file ctype.h, the story would have been totally different. And आप नहीं करोगे जो मैं कह रहा हूँ, you will suffer as far as learning programming goes. And I promise you, if you do what I say, मैंने पहली बार भी कहा था, आपका success is my responsibility. If you do what I say, and it's just an indication कि आप नहीं कर रहे हो, आप या तो आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप मुझसे सीखो मत. किसी पे को तो भरोसा करना होगा आपको. If you really want to learn the languages, तो we have ctype.h. अगर आपने header file ctype.h रखा होगा तो यहाँ एक फंक्शन है readymade is alpha. Checks whether given character is alphabet character or not. यानी अपर केस में ये है क्या, क्यों ये मगजमारी करे इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जब आपके पास रेडीमेड फंक्शन है is alpha. There is absolutely no need for you to struggle so much to think about this condition. यानी जब मैं कुछ कहता हूँ ऐसे नहीं आपको परेशान करने के लिए मैंने कुछ कहा है ये पढ़ के आओ ये करो. That's not with the intention of troubling you. That's with the intention to help you understand, explore new things. And if you don't believe me, how can I help you? तो यहाँ एक सिंपल स्टेटमेंट लिखना था
इज अल्फा। खत्म। ये अल्फाबेट अल्फाबेट है क्या? अरे वो अल्फाबेट तो आपको आगे बढ़ना है, अल्फाबेट नहीं है तो मुझे स्टॉप करना था। तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे इफ नॉट अल्फा, नॉट रिग्रेसिवली ALPHA। तो यहाँ लिखूंगा इज अल्फाबेट, खत्म, कुछ कोड ही नहीं करना है। ओके, इज अल्फा अल्फाबेट, यानी इज अल्फा अल्फाबेट मतलब ये इज अल्फा, जो भी अल्फा कैरेक्टर आप पास करोगे वो अल्फाबेट है क्या? ए डाला तो अल्फाबेट है, नॉट अल्फाबेट, नॉट विल ट्रिगर द रिजल्ट, बात खत्म। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो कंडीशन देखोगे, आधे लोग इस कंडीशन में कंफ्यूज होने वाले, जिसको प्रोग्राम भी नहीं आता ना वो भी समझ आएगा। इज अल्फा इफ इट इज नॉट एन अल्फाबेट, नॉट नॉट इफ इट इज नॉट एन अल्फाबेट, स्टॉप करो प्रोग्राम। सो दैट्स द बेटर वे टू राइट द कोड। देयर आर रेडीमेड फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन सी। और मैं आपको हर एक हेडर फाइल एक्सप्लोर खुद नहीं करके देने वाला, हर एक फंक्शन का एग्जांपल ले लो, ये ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। कुछ चीजें आपको भी करनी है। अगर मैंने यहाँ एट द रेट डाला, कहता है दिस इज नॉट एन अल्फाबेट, अगर आप वो सारे सिंबल्स डालते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट नॉट एन अल्फाबेट, 123 के आगे रख देते हैं नॉट एन अल्फाबेट, 123 के 65 के नीचे कर देते हैं 4 नॉट एन अल्फाबेट, वर्किंग फाइन। एंड इफ आई एंटर अपर केस ए या अपर केस ई, अगेन स्मॉल केस ई, एंड इफ आई एंटर स्मॉल केस ई, आगे अपर केस ई। अब मुझे बताइए क्या ये कंडीशन अच्छा है या ये बेहतर है? What is better, using the function is alpha or writing such a complex condition जो अच्छों को पसीना छोड़ेगा? बोलो क्या बेहतर है? इज अल्फा। इज अल्फा। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर ये हेडर फाइल देखा होता तो देयर आर एडिशनल फंक्शन विच आर देयर। इज लोअर, इज अपर, यानी कैरेक्टर अपर केस के नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए का क्या बात कर रहे हैं? मुझे उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, अगर वो लोअर केस में है तो दैट्स इट। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा इज लोअर, ये अल्फाबेट अगर लोअर केस है तो मैटर क्लोज। मैं लिखूंगा इज लोअर अल्फाबेट, अगर ये अल्फाबेट लोअर है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करो, अदरवाइज उसे लोअर केस में कन्वर्ट करो। अरे इससे और सिंपल कोड क्या बनेगा? तो आपके सारे फंक्शंस रेडीमेड है। Although C doesn't have those functions, there are these header files, and these header files provides you such functionality. When such ready-made functions are available, why in the world are you thinking about writing some complex code जिसको लिखने में मुश्किल है, समझने में मुश्किल है, और उसको टेस्ट करने में 4 बार सोचोगे, हर बार गलत, when there are ready-made functions which can do that operation for you. Is alpha, it returns to the enter character alphabet. तो यहाँ मैंने कहा not is alpha, that means it is not an alphabet, तो प्रोग्राम को स्टॉप करो। is lower alphabet, अगर वो लोअर है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करो, अगर वो लोअर नहीं है अल्फाबेट यानी अपर केस है तो उसे अपर केस में, उसे लोअर केस में कन्वर्ट करो। Such beautifully you could have written the code provided you had explored what I had asked you to explore. तो मैंने दिया अपर केस ई, आ गया स्मॉल केस ई, मैंने दिया स्मॉल केस ई, आ गया लोअर केस ई। अगर आप यहाँ से ट्रेस करना चाहते हैं तो यू कुड ट्रेस द कोड एंड सी फ्रॉम हियर इज लोअर, एक लोअर केस लेता हूँ कैरेक्टर। सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू एंटर अ कैरेक्टर हियर एंड आई एंटर लोअर केस ई, चेक करते इज लोअर अल्फा, ट्रू। अपर केस में कन्वर्ट किया, देखो ये अपर केस आ गया 69 और ये प्रिंट किया टॉगल कैरेक्टर इज अपर केस। अगली बार दोबारा रन करते हैं, अपर केस ई लेते हैं, इस बार चेक करते हैं इज लोअर अल्फाबेट। ये जो ई है आपका, अभी जो एंटर किया आपने, क्या वो दोबारा रन करते हैं, हमने दिया अपर केस ई, ये जो अल्फाबेट है आपका अपर केस ई, क्या इज लोअर, ये लोअर है क्या, लोअर केस है क्या? नहीं सर। कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में गए, अपर केस में कन्वर्ट किया और प्रिंट किया। हेलो अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया, वी कन्वर्ट टू लोअर केस एंड वी हैव प्रिंटेड इट। दैट्स हाउ सिंपल इट बिकम्स। तो प्रोग्राम इज नॉट ऑल अबाउट बिना वजह दिमाग को स्ट्रेस करो और कुछ तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखो व्हेन देयर आर सच रेडीमेड फंक्शन व्हिच आर अवेलेबल। एटलीस्ट नाउ मुझ पे यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ आई एम गिविंग यू द बेस्ट वे टू लर्न दिस लैंग्वेज। थोड़ा सा भरोसा करोगे और जो मैं कहूँगा वो करोगे। मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस एंड इफ यू डोंट डू इट व्हाट आई एम सेइंग, आई विल आल्सो नॉट स्पेंड माय टाइम। सिंटैक्स पढ़ाते आगे जाऊंगा, लैंग्वेज कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मालूम है लैंग्वेज खत्म हो गया है, बट लैंग्वेज के फीचर्स अगर आपको मालूम नहीं रहेंगे तो आपको सिर्फ एक ऐसा एक गलत फहमी रहेगी, आई हैव लर्न सी,
wherein you have not even explored what that language is all about. Now there are a number of functions. Don't expect me to give an example for every function. Had you explored this, you would have been so very happy. Alpha numeric है क्या? Alpha है क्या? Lower है क्या? Upper है क्या? Digit है क्या? X digit है क्या? Control character है क्या? Graph है क्या? Space है क्या? Blank है क्या? Sprint है क्या? दुनिया भर के characters दिए गए हैं. तो आपके लिए असाइनमेंट है, ये कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के सारे फंक्शंस, इतना ही यहाँ जो लिखा है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के सी टाइप डॉट एच के अंदर से कैरेक्टर क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर मैनिपुलेशन, ये दो सेट ऑफ फंक्शंस मुझे आपके नोटबुक में चाहिए. ओके, और नहीं लिखने हैं तो लेक्चर को मत आइए. एज सिंपल एज दिस, बिकॉज यू डोंट डिजर्व और आई डोंट डिजर्व टू हैव ब्रिलियंट स्टूडेंट लाइक यू इफ यू आर नॉट गोना फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. I want people to believe in me and do what I say and then hold me responsible for your understanding of the technology. भरोसा नहीं मुझ पे, मत आइए. आना है तो जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा. You have to learn the way I teach you. यानी 3 महीने के लिए मैं आपका बॉस हूँ. जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद गाली दो या थैंक यू बोलो, वो आपकी मर्जी. But if you are here for the session, then you have to do it the way I tell you. Now it's not a matter of choice. आपको choice का matter नहीं है, because you are not self motivated. खुद होके नहीं कर रहे, तो आपको फोर्स करना शायद जरूरी है. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक डू. आई विल ह्यूमिलिएट यू इफ यू डोंट डू इट. अगर लेक्चर में आते हो बिना किए तो मैं आपको बहुत गलत बात कहूंगा, आपको क्लास के सामने आपको बेइज्जत करूंगा और निकलूंगा भी क्लास में से. तो इफ यू वांट टू लर्न, कम फॉर द सेशन, एंड इफ यू डोंट वांट टू लर्न, थैंक यू फॉर द पेइंग द फीस. बाय बाय. ओके, so I have been teaching C language. The first time I taught C language was even before you were born. 1994, I took my first C batch. So I can immediately understand किसने क्या पढ़ा है, क्या नहीं किया है, just looking at the code that you give me. So don't try ever to fool me around by giving me some answers. Most of you are not even born in 1994. And तब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी. Okay. So do what I say and then see what happens, your understanding of the language. So that was about how you work with that header file ctype.h. अब मैं कह रहा हूँ पूरा header file भी मत एक्सप्लोर करो, सिर्फ कैरेक्टर क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर मैनिपुलेशन. जब जिस चीज की जरूरत है तब मैं आपको बताऊंगा और क्या फंक्शन देखने हैं. So 2 set of functions you are going to explore: character manipulation from ctype.h and character classification functions. तो टोटल आने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंक्शन का 1 लाइन में एक्सप्लेनेशन चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूँ उसका कोड भी देखो, अरे एक लाइन पढ़ते ही पता चलता है क्या है. हाँ, 2-4 फंक्शन है जो कंफ्यूजिंग, इस दो पता चलता है. आपको देखना है कंट्रोल क्या है, ग्राफ क्या है, ब्लैंक क्या है, प्रिंट क्या है, इनको जरूर देखना होगा आपको. पंक्चुएशन समझना, पंक्चुएशन मार्क्स के लिए रेडीमेड फंक्शन है, तो कहाँ कोड लिखते बैठेंगे. पंक्चुएशन का आस्की वैल्यू क्या है, समरी आस्की सर चार्ट दिखाओ बार बार. अब कहाँ ढूंढोगे इसमें से पंक्चुएशन कैरेक्टर कौन से है, क्या है, कहाँ ढूंढोगे, क्यों ढूंढना है जब आपके पास रेडीमेड फंक्शन है. इस पंक्चुएशन चेक करा इफ कैरेक्टर इज पंक्चुएशन और. बट जो कंफ्यूजिंग है, कंट्रोल क्या है, डिजिट है समझ में आ रहा है, एक्स डिजिट क्या है, कंट्रोल क्या है, ग्राफ क्या है, स्पेस क्या है, जरूर इनको एक्सप्लोर करके देखिएगा. कोई भी फंक्शन जो आपको पता नहीं चल रहा है, इस डिजिट में आगे क्लिक करो, इस फंक्शन पे जाके देखो क्या कहता है. हाँ, ये 0 to 9 के अंदर के डिजिट है, चेक करेगा. ग्रेट. तो सब कुछ अगर रेडीमेड है इसी में, there is a standard library support which is made available. Why not use that particular library to get your work done? क्यों बिना वजह कोड लिखने के पीछे पड़े. Do not reinvent the wheel. जो काम किया हुआ है वो रेडीमेड यूज कीजिएगा, जीरो से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा. The code that you wrote, you are unnecessarily writing the statements right from zero से लिखने की कोशिश करें. और वहाँ 2-4 if सर एंड लिखूं या और लिखूं, टेस्टिंग करना पड़ेगा. आपने कोड लिखा वो सही है कि नहीं, मुझे टेस्ट करना होगा. इस अल्फा को मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. इट हैज बीन यूज्ड इन सी लैंग्वेज सिंस 1967 या 1971 एट द मोस्ट. 71 से लेके आज तक सही काम कर रहा है. फॉर लास्ट 70 मतलब 30 और 50 सालों से, मोर देन 50 years it is working right. Why in the world it fail now? आप कोड बताओ तो इफ एंड एंड और मुझे जरूर चेक करना होगा, 10 बार चेक करना होगा जस्ट टू सी क्या सारे सिनेरियोज आपने हैंडल किए है कि नहीं. अब उसके लिए रेडीमेड फंक्शन है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम राइटिंग द कोड.
So it's not for no reason I'm troubling you. It's for your betterment I'm troubling you. मैं आपको जब बार बार कह रहा हूँ करो करो करो, it's only for your betterment, so that you do the things the right way. Not that the previous solution was wrong. It was not right way to do it. आपको यहाँ से पुणे स्टेशन जाना है, आपको निगड़ी से पुणे स्टेशन जाना है. You can take the Mumbai Pune highway and go straight to Pune station. But पुणे स्टेशन जाने के लिए और एक रास्ता है. क्या करोगे? यहाँ से जाओगे मुंबई, मुंबई से जाओगे नासिक, और नासिक से आओगे खेड़ मंचर करते हुए पुणे स्टेशन. पॉसिबल है. जो यहाँ 20 किलोमीटर जाने वाले थे, ये 150 किलोमीटर टू गो टू मुंबई, अनदर 220 किलोमीटर टू गो टू नासिक, और 200 किलोमीटर से पुणे. सर मैं पुणे पहुंचा ना. अरे वाया मुंबई नासिक करते हुए क्यों जा रहे? खड़की दापुड़ी करते जाओ ना 20 मिनट में. तो जो 20 मिनट का डिस्टेंस है उसके लिए, या 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके लिए आप 250 440 कितना 150 प्लस 220 प्लस 200 यानी मोर देन 500 किलोमीटर घूम के भी आ सकते हैं. सर मैं पुणे से निगड़ी से पुणे स्टेशन गया. हाउ? बाय ट्रैवलिंग 550 किलोमीटर. सही है क्या? गए तो सही होगा, पहुंचे. दैट डजंट मीन इट्स द राइट वे टू डू इट. सो व्हाट यू डिड वाज करेक्ट सॉल्यूशन. जाओगे पुणे स्टेशन, बट ये ऐसे घूम फिर के, और किसी को समझ में नहीं आ रहा यार क्या क्यों जा रहे वहां. जाना था पुणे स्टेशन, ये क्या मुंबई कहाँ जा रहे हैं, मुंबई से नासिक कहाँ जा रहे हैं, नासिक से वापस खेड़ क्यों आ रहे हैं, मंचर क्यों आ रहे हैं, वहां से वापस पुणे स्टेशन, या वहां से वापस कासरवाड़ी, कासरवाड़ी से वापस पुणे स्टेशन. तो डायरेक्टली जाते हैं यहाँ से कासरवाड़ी से पुणे स्टेशन. So it's not like whether you're getting it right or not. Whether it's the right way to do it or not is a question that you should ask yourself. Now that we discussed this solution, let's discuss one more example to understand whether things are right or not. Now, the next question is, accept the single digit integer and check whether it's odd or even. क्या क्वेश्चन है? Accept a single digit integer and check whether it is odd or even. या सिंगल डिजिट भी छोड़ते हैं. Accept integer and check whether it's odd or even. यानी इंटीजर एक्सेप्ट करो और चेक करो ये ऑड है या इवन है. चलो बताओ लॉजिक. Look, we are spending, it's a fifth session that we are spending on if else. क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट ढंग से आने चाहिए. अगर नहीं आते तो आगे का पढ़ के कोई फायदा नहीं. सो आई एम नॉट पुशिंग यू थ्रू लाइक ये करो चलो आगे का टॉपिक आगे. आई कुड वेरी वेल डू दैट, मेरे लिए अच्छा है, बैच जल्दी खत्म हो जाएगा. बट देन अगर आप नहीं पढ़े तो फायदा क्या है? चलो बताओ क्या करें. क्वेश्चन है, accept integer and check whether it's odd or even. बोलो. पहले इनपुट लेंगे सर. इनपुट लेंगे पहला पक्का. प्रिंट Yes, मतलब sir. इंट नाम Tot- पहले. एक पहला वेरिएबल बनाएंगे. क्या नाम दोगे वेरिएबल? हाँ नंबर नंबर दो. चलो फिर so printf printf. Please enter integer. Scanf. %d. number Ampersand number. so if statement
number modulus 2 equals to 0. डबल इक्वल टू Equals to. No, sir, with the case. 0. The parenthesis closed. Printf. The number is they have entered integer is even. Then printf else %3 is odd. Looks right. Let's check it out. Simple है. अगर कोई नंबर इधर एंटर करता है 7 है तो लेट्स चेक 7 mod 2 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है? इज दैट इक्वल 0? नहीं. इंटीजर डिवीजन अगर है तो 7 डिवाइड बाय 2 इंटीजर बाय इंटीजर आंसर इज 5 इंटीजर. मॉड लेगा तो रिमाइंडर देगा 7 2 3 6 है रिमाइंडर 1 है. 1 इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है तो जाएगा बोलेगा नंबर इज ऑड. यूजर ने नंबर दिया 10 mod 2 इक्वल टू 0 है क्या? रिमाइंडर 0 है क्या? हाँ है. द नंबर इज इवन. लुक्स राइट. लेट्स चेक वेदर इज राइट. We have been asked to enter integer and I enter number like 10. कहता 0 is even. सर तिथं रिमाइंडर फंक्शन Louder. रिमाइंडर फंक्शन करा देवाला तेच दिलं मॉड्युलस रिमाइंडर. व्हाट इज सर सर इंटीजर में लिखा है सर. और एक बार करो. इस बार नंबर ऑड लेते 15. कहता है 0 is odd. एक नोट करो मगर ये ऑड और इवन सही कह रहा है. मैंने नंबर दिया 67 कहता है नंबर ऑड है. सर वो प्रिंट हाँ प्रिंटफ में वो कॉमा देके नंबर नंबर लिखना चाहिए. नंबर कौन देगा? ये फॉर्मेट मॉडिफायर है, स्पेसिफायर है. आर्गुमेंट कहाँ है? तो कॉमा नंबर. दैट मींस यू हैव टू स्पेसिफाई द आर्गुमेंट. ये परसेंट किसकी वैल्यू प्रिंट है? एज में नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर देयर उतना आउटपुट आने वाला है. मतलब आपको यहाँ आउटपुट आने वाला है ठीक है बट यहाँ आपको आर्गुमेंट तो पास करो अब जाके सही काम करेगा. सो लुक स्मॉल मिस्टेक्स है लिख के रखना जरूरी है. ये मत करो आउटराइटली रिजेक्ट मत करो. हाँ मुझे मालूम है आई कैन डू इट एंड सी. प्लीज एंटर इंटीजर. आई एंटर 45 नंबर इज ऑड. 45 इज ऑड. आई एंटर नंबर लाइक 44 कहता है 44 इज इवन. ग्रेट. और एक नंबर एंटर करते हैं. मैंने कहा -67 कहता नंबर इज ऑड. मैंने कहा -6768 the number is even. Working right. Where is understood this? Sir, we can use not is alpha alphabet. Not क्या? Is alpha. अगर अल्फाबेट एंटर किया तो Is alpha is not Alpha alpha. enter करता है. तो अगर यूजर ने एंटर किया अल्फाबेट that to enters A. Okay, क्या होगा? सर ए की आस्की वैल्यू A की आस्की वैल्यू लेगा. करेक्ट. और क्या आ जाएगा A का आस्की वैल्यू? 65 आएगा. A का आस्की 65 mod 2 equal to 0 या नहीं है? और दिखाएगा सर. और दिखाएगा. अरे सो रहे हैं आप लोग. यानी आपने नोटबुक को देखा ही नहीं है. ये कहता है 0 इज इवन. ये इवन कह रहा है 65 को. याद करो जरा नोटबुक टर्न करो और स्कैनएफ देखो. स्कैनएफ के मैंने सिनेरियोस देते एग्जांपल पिक्चर ड्रॉ करने के लिए गए थे. जब आपका एस्केप जब आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %d होता है न्यूमेरिक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और कैरेक्टर इनपुट देने पर क्या होता है? टर्न ऑफ द पेजेस एंड सी एंड टेल मी क्या होता है. जब आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है और कैरेक्टर आ जाता है string के अंदर तो क्या आ जाता है? टर्न ऑफ द पेजेस एंड टेल मी नो. मैंने डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था स्कैनएफ के. अगर इनपुट अगर कैसे एक्सेप्ट करना है वो गलत आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप भूल जाओगे तो प्रोग्राम कैसे लिखोगे आगे? टर्न ऑफ द पेजेस एंड लेट मी नो एनीबॉडी हु हैज रिटन इट. fails to extract non-white fails to character. extract यानी न्यूमेरिक फॉर्मेट स्पेसिफायर %d को अगर string में कैरेक्टर आ जाए इट फेल्स टू एक्सट्रैक्ट. नोट लिखा है उसका एग्जांपल के साथ है डायग्राम. ये फेल हुआ है और ये फेल होने पर आगे बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है आगे? ये फेल हुआ है. नंबर में कुछ नहीं स्टोर होता. नंबर में गार्बेज है. वो गार्बेज वैल्यू mod 2 equal to 0 है क्या? हाँ तो नंबर इज इवन कह रहा है. वो और भी कह सकता है एनीथिंग इट कैन प्रिंट. नंबर में कुछ भी स्टोर नहीं है.
तो ये फेल हुआ है। ये ए पे ही फेल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये कई सारे सिनारियो में फेल होगा। आई एंटर नंबर and the number that I enter is suppose अनिल। अनिल कहाँ का और ये तो कह रहा अनवी जीवन, ये कहाँ की बात हुई? ये तो स्कैनर ही फेल हुआ था यार, तो उसके और आगे भी फेल होगा। मैंने नंबर 100 देता हूँ, 100 के लिए और है इवन है? इवन इवन है, कहता 100 इज इवन। ग्रेट, ये काम कर रहा है। लेट्स डू इट वंस अगेन। कहते हैं ये भी इवन है, वेरी गुड। लेट्स डू इट वंस अगेन। कहते हैं ये इवन है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं। कहाँ का इवन, कहाँ का ऑड, क्या चल रहा है? कुछ भी डालो इवन ही कह रहा है। ये सारी जगह फेल ही हो रहा है। ये हेक्स वैल्यू था, ऑक्टल वैल्यू था, ये रीड नहीं करेगा परसेंट डी। मैंने ये भी कहा था आपको, परसेंट डी अननेसेसरी यूज मत कीजिएगा। जब तक आपको ये नहीं मालूम कि इनपुट सिर्फ डेसिमल सिस्टम में आने वाला है तो ही परसेंट डी लिखेगा। अगर कोई कहता है प्लीज एक्सेप्ट, आई लिखना चाहिए। अब कितनी बार बताओ वही सारी चीजें आपको लिख के रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ डेसिमल सिस्टम में इनपुट चाहिए तो परसेंट यूज कीजिएगा। किसी भी सिस्टम में अगर एंटर करना है तो हेक्साडेसिमल चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वो एक्स एफ, ये ऑड है, ये बताएगा नंबर ऑड है, 15 इज ऑड बिकॉज ये नंबर 15 है। रीड कर पाया? अभी इसके पहले रीड नहीं कर पा रहे थे हम लोग। जब मैंने वो x63 लिखा था, वो x63 लिखा था, देन इट वाज 99 and 99 इज ऑड। वो तो इवन कह रहा था, वो जीरो ले रहा था उसे। ये OX63 is hexadecimal equivalent of number 99. 99 is odd. रीड You नहीं work कर correctly. रहा। But then this still fails for character like A. That is 0 is even. That means this is not the right way to write the program, not the correct way to write the program. You have failed to check कि मेरा scanf fail हुआ है, सक्सेस हुआ है। क्या आप ये चेक करना चाहोगे अगर scanf fail हुआ है तो? क्या आप एक कंडीशन नंबर ऑड है इवन है ये चेक करना चाहोगे अगर नंबर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो? नहीं सर। नहीं। और परसेंट आई इंश्योर्स दैट प्रोमिसेस यू दैट यू विल एक्सेप्ट इंटीजर इन हेक्साडेसिमल, ऑक्टल डेसिमल, कुछ भी फॉर्मेट डालो ये एक्सेप्ट करेगा। बाइनरी में नहीं करेगा, बाइनरी में अलाउड ही नहीं आपके पास सी में, पर उतने के लिए काम करेगा। तो आप चेक करो ना ये फेल हुआ है सक्सेसफुल था। इसके लिए यहाँ एक वेरिएबल लूंगा ऑफ टाइप बुलियन। सर सर हम लोग इफ कंडीशन बना के देखेंगे कि अल्फाबेट है कि नहीं, फिर उसके बाद जो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है क्या चेक करोगे? अल्फाबेट है कि नहीं के लिए नंबर में अल्फाबेट आना चाहिए ना। स्कैनर विद परसेंट डी में अल्फाबेट आने पर वो फेल हो रहा है, नंबर में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है। वो आपका अल्फाबेट एचटीआईएम में पड़ा हुआ है। डायग्राम है क्या आपके सामने? यस सर। कहा वो निकाला क्या उसने, एक्सट्रैक्ट किया उसको ए को परसेंट डी के साथ? नहीं नहीं सर। सर। नहीं, वो वही पड़ा हुआ है तो नंबर में आया ही नहीं अल्फाबेट, तो क्या चेक करोगे? तो छोटी छोटी चीज होती है। स्कैनर क्यों इतना डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू राइट ऐसे सिली कोड्स। एंड बिलीव मी, ये कोड आप लेके जाओगे ना, half of the units and most of the universities will give 100% marks. So it's a wrong code. Probably they don't know how to write the program. मैंने एक बुलियन दे दिया is input successful, इसमें लिख दिया false initially। अब लिखता हूँ यहाँ is input successful scanner। बिकॉज ये एक भी वैल्यू रीड करेगा ना 1 देगा। 1 मतलब सी में याद है ना, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, ओनली थिंग दैट इज फॉल्स इज 0। तो scanf अगर 0 रिटर्न करता है, scanf रिटर्न नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू व्हिच वैल्यूज हैव बीन असाइंड सक्सेसफुली। अगर ये scanf फेल होता है तो इसमें 0 आ जाएगा। 0 मतलब फॉल्स है। यहाँ चेक करेंगे if not if not if input successful। अगर input successful नहीं है, यानी यहाँ 1 आता है, not 1 will become false, बाहर आ जाएगा। इसमें 0 आता है, not 0 will be true, अंदर आता है।
Sir, STD, standard error. लेट्स ट्रेस दिस कोड नाउ, यहाँ से ट्रेस करते हैं। पहली बारी फेल कर देते हैं, यूजर अल्फाबेट डाल देता है ए या कोई भी सिंबल डाल देता है। Here we come. User enter symbol say like hash, यहाँ पे इसमें क्या आ गया, देखो क्या आ गया, क्या आ गया इसके अंदर, false. false, not false, not false क्या होगा, not ऑपरेट क्या करेगा, Input has failed since you didn't enter. not false का रिजल्ट क्या बताइए, True. ट्रू है। अंदर गए कहा इनपुट हैज फेल्ड एंड प्रोग्राम स्टॉप्स, क्यों आगे बढ़ना, आपने जो इनपुट दिया वो गलत है, आगे बढ़ना ही नहीं हमें। तो अगली बार मैंने दिया डॉलर, कहता है इनपुट हैज फेल्ड सिंस यू डिडंट एंटर एन इंटीजर, आपने इंटीजर नहीं एंटर किया, ये जो भी डाला आपने ये इंटीजर नहीं है, इनपुट हैज फेल्ड सिंस यू डिड नॉट एंटर इंटीजर। चलो अगली बार इंटीजर डाल के देखते हैं, मैंने दिया 45, कहता 45 और, मैंने दिया 66, कहता 66 इज इवन। इतना ही नहीं, अब मैं देता हूँ कैरेक्टर लाइक ए, कहता इनपुट इज फेल्ड सिंस यू डिड नॉट एंटर इंटीजर, इट्स वर्किंग राइट। तो आपको एक बूलियन वेरिएबल लेना चाहिए, उसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स रखा हमने, नहीं कुछ रखोगे तो भी चलेगा, चलो कुछ मत रखो तो भी चलेगा, बिकॉज स्कैनएफ आपको कुछ तो कुछ रिटर्न करेगा ही। व्हेन स्कैनएफ सक्सीड्स, यानी स्कैनएफ क्या रिटर्न करता है, स्कैनएफ आल्सो रिटर्न्स इन इंटीजर, स्कैनएफ का रिटर्न टाइप देखो इंटीजर है, इंटीजर है, इट रिटर्न्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू व्हिच वैल्यूज हैव बीन असाइन्ड सक्सेसफुली। तो ये स्कैनएफ अगर सक्सेसफुल है तो कितना डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, 1 इंटीजर, अगर ये 1 इंटीजर इस 1 वेरिएबल को सही तरीके से असाइन हो गया है तो 1 रिटर्न करेगा, 1 मतलब ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, तो यहाँ जाएगा ऑड या इवन चेक करके प्रिंट करेगा। आपका ये लॉजिक सही था, याद है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो आपका इनपुट ही गलत है तो आगे का प्रोग्राम सही रन होने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, शुगर केन जूस क्रशिंग मशीन, शुगर केन डाला तो जूस निकलेगा, बाम्बू डाला तो जूस नहीं निकलेगा उसमें से। तो यू हैव टू कीप इन माइंड वेदर आर यू डूइंग इनपुट वैलिडेशन और नॉट। So with this input validation, this is far better code that we have written. Although the design is not perfect, why? Because we could have written this code in a different way as well. But जितना आज तक हमने देखा है उस बेसिस पे अच्छा है। Rather to handle these situations, error situations, to know whether scanf has failed or not, ये बिना किए भी मैं चेक कर सकता हूँ scanf fail हुआ है सक्सेस हुआ। उसके लिए there are some features which are available in C language. एक हमारे पास एक header ही है पूरा C language में, but don't worry about it at all. Neither do I want you to check that thing out. But एक error है हमारे पास, can you see anywhere error? Yes, sir. Error Yeah. number dot. error number dot h, ये रिपोर्ट करेगा आपको एरर्स हुए क्या आपके प्रोग्राम में, कहीं एरर्स है क्या, ये रिपोर्ट करेगा। सो इसे अगर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, टू एडवांस, बट यहाँ कुछ तो है, एरर नंबर है, असर्ट है, स्टैटिक असर्ट है। आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग राइट नाउ, वी विल सी इट लेटर। हमारे पास सेट कंस्ट्रेंट हैंडलर है, अबॉर्ट हैंडलर है, इग्नोर हैंडलर है, देयर आर सम फीचर्स व्हिच दिस कैन बी हैंडल्ड इन अ मच बेटर वे, है हमारे पास तरीका। ऐसे कई सारे प्री डिफाइंड एरर कोड्स है, कई सारे एरर कोड्स है, दे हैव नॉट इवन गिवन द कंप्लीट लिस्ट ओवर हियर, यहाँ नहीं दिए। आई विल शो यू द लिस्ट व्हेन टाइम कम्स, राइट, जब सही समय रहेगा, because I will be discussing the topic of error handling later, and there are ways in which we can handle errors. Error handle करने का अपना एक तरीका होता है। तो जब भी कोई भी C का ऑपरेशन फेल हो जाता है, that can be handled automatically, वो कर सकते हैं, but it's too early for us to talk about it, इसलिए वो नहीं कह रहा, और वो एक्सप्लोर करने के लिए भी नहीं कहूँगा, because वो कितना भी आप पढ़ोगे ना खुद होके, I challenge you will not understand those things because it's too technical way they have put it across. I'll take some real use case and I'll discuss it in better way. But first let's start writing the program. Then we'll see how to handle the failure. और जब तक हमें वो errors को कैसे handle करना समझ में आ रहा है, हम input validation उतना तो कर लेंगे। तो next time when you write a program, make sure that you take all such things into consideration while you are writing the program. Don't make an assumption
ऐसा ही और आगे चलेंगे, ऐसा ना कीजिएगा। सोच समझ के सारे केसेस के बारे में सोचिएगा एंड देन ट्राई एंड सॉल्व द एग्जाम। नाउ सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फॉर यू। चलो नोट करो क्वेश्चंस, मैं डिक्टेट करता हूँ। करिश्मा क्या डाउट है? करिश्मा रेज द हैंड, क्या डाउट है? डाउट नहीं तो हाथ नीचे करो। Anybody heard her, what she said? आवाज ब्रेक हो रहा है उसका। इंटीजर डाले तो नंबर अगर बड़ा डाले सर, करिश्मा, अगर हमें नंबर एक बड़ा मिनट, डाले तो रिपीट करो, हमें कुछ नहीं समझ आया। सर आवाज आ रही है मेरी? अभी सर बोलो अभी। सर अभी आ रही है आवाज? यस बोलो ना, बोलो आई कैन हियर यू। But what she was trying to say is a very nice thing that she has thought about. सर अगर रेंज से ज्यादा गया तो रेंज से ज्यादा गया तो unfortunately C में that problem will not be handled the way we handle it. Your C performs arithmetic type conversion, implicit conversion. वो automatically convert होकर कोई एक नंबर आ जाएगा and you will fail because वहाँ scan भी हो जाएगा, नंबर भी आ जाएगा and you will be keeping on wondering कि ये क्या हुआ. Okay, और to handle that the solution is quite complex and I'm not going to talk about how to handle that situation right now. अभी नहीं बताऊंगा, but जरूर आगे जाके बताऊंगा how to we handle that particular situation as well. When the input is given large, what happens is C is not a strongly typed language, so it performs data type conversion. अगर आपने 10 बार 9 दे दिया तो ये कह रहा है ये वाला नंबर इज एन ऑड नंबर, अरे हमने वो एंटर ही नहीं किया है। To handle this, there is one guideline that is there, and guideline says, सुनना है इसका आंसर, एक लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। Shall I give you Karishma the answer? Karishma is left. Okay. नो सर, हेलो। Okay. इसका आंसर है, okay, now you'll be surprised. The answer is to accept the input, don't use scanf. कैसे लगा? scanf नहीं यूज करेंगे, हाँ रीड कैसे होगा डेटा फिर? वही तो उसका सॉल्यूशन तो मैंने बताया आपको। टू एक्सेप्ट इनपुट डोंट यूज scanf। और हमें तो जितने सारे बाकी फंक्शन देखे हमने, getS, fgetS, getChar, they are accepting only alphabets. तो scanf यूज नहीं करेंगे तो इनपुट कैसे यूज करोगे? हाउ विल यू रीड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, डबल वैल्यूज, कैसे रीड करोगे? तो रूल कहता है, करिश्मा का जो क्वेश्चन था उसे अगर हैंडल करना है डोंट यूज scanf। भाई ये नहीं कह रहा एक्सेप्ट मत करो, डोंट यूज scanf. ओके, रादर यू शुड नॉट बी एक्सेप्टिंग नंबर्स। अब ये क्या बात है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे नंबर? तो आधे तो प्रोग्राम, दुनिया भर के प्रोग्राम नंबर्स ही एक्सेप्ट करने वाले। बट आई टेल यू अबाउट इट, डोंट वरी, दिस इज पेंडिंग ऑन माय साइड. ओके, द सॉल्यूशन इज इंटरेस्टिंग. There are different forms of scanf which are there, and one such form of scanf is scanf. scanf is preferred over scanf. Okay, वो एक solution है scanf. scanf हमने डिस्कस किए थे, scanf and fscanf. आई थिंक यस सर। यस, एक फाइल से रीड कर रहा था, एक मेमोरी से रीड कर रहा था, तो कहता मेमोरी से रीड करो। अरे मेमोरी डेटा आएगा कहाँ से? ओके, थिंकिंग क्या कर सकते हैं, तो करना तो है इनपुट इंटीजर एक्सेप्ट, बट स्कैनर विद %d %i, कोई भी अच्छा डेवलपर ये %d %i %f %g के झंझट में नहीं पढ़ने वाला है। अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। अभी सिर्फ इंटीजर, करिश्मा का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बट इट्स टू अर्ली। मैं सोचा था कोई ना पूछे अभी तो अच्छी बात है, बट नाउ दैट यू आस्क्ड इट, सो आई एम गिविंग यू अ हिंट टू इट. Scanf is not the best choice to accept data. There are other functions using which you could accept the data. Sir, can we use wscanf? वो तो वाइड कैरेक्टर है, इसमें नंबर में कहाँ वाइड कैरेक्टर? क्या मराठी में अनिल लिख रहे हैं क्या? नहीं सर। सर फिर हम मेमोरी स्टोर कर देंगे, देन वो मेमोरी यूज करेंगे। हाँ, मतलब नंबर तो चाहिए ना मुझे एट द एंड ऑफ द डे, उसे मॉड लगाना है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। आपको स्ट्रिंग करके एक्सेप्ट करोगे आप, बट मॉड तो लगाना है उसको। % कर पाएंगे क्या? डबल कोट्स में अगर कोई नंबर रहेगा 123, कैन आई से डबल कोट्स में 123 मॉड 75? नो सर। No, sir. So let's keep it pending. Don't worry about it. I'll definitely teach you how to do that. But ये pending है, not the right time, because इसमें कुछ और करना है,
और वी आर नॉट रीच दैट स्टेज, वो प्रॉब्लम हैंडल करेंगे, वो एरर्स के साथ मैं वो भी डिस्कस करूंगा, या उसके पहले ही करूंगा दिस पर्टिकुलर थिंग। ये एक सजेशन है। बहुत मुश्किल हो जाता है सी में कोड लिखना, टू राइट द कोड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बिकॉज वी आर सो वेरी टेम्पटेड टू यूज स्कैनफ एंड प्रिंटफ। लगता है यार सी में इससे आ रहा कुछ है ही नहीं, और गाइडलाइन कहता है यूज मत करो, स्पेशली फॉर न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा। स्कैनफ का सर वर्जन पण मॅक्झिमम सर हाँ बोला निवड किती असतं त्याचं नाही का आपण लिहू शकतो लिहिलं ना आपण 2:31 - 1 इंटीजर के 4 बाइट्स आहे, मग त्यात सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू काय ठेवू शकतो आपण 2:31 - 1, अनसाइंड असेल तर 2:32 - 1, याद है नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल -1। यस सर। मगर वो प्रॉब्लम क्या है, एरर नहीं देता है वो, इट परफॉर्म्स डेटा टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट, देयर वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अगर ऐसा काम जावा में करने जाओगे तो एरर देगा, सी नहीं देगा, C++ नहीं देगा, दे आर ओके, दे परफॉर्म इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और अगर हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करना है तो नंबर ही एक्सेप्ट ना करो, या एज ए इंटीजर मत है, %d वगैरह मत लिखो, %i मत लिखो, आई टीच यू, डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट इट, दैट्स ऑन माय साइड, मेरी साइड पे। बट पहले अभी असाइनमेंट्स ले लो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट अ 3-digit इंटीजर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, सारे वैलिडेशन करना है। एक्सेप्ट अ 3-digit इंटीजर, 3 डिजिट वाला इंटीजर एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट अ 3-digit इंटीजर and check whether it is a palindrome. Accept a 3-digit integer and check whether it is a palindrome. 3 डिजिट का इंटीजर एक्सेप्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। Now what is a palindrome? Anybody? So when we reverse it, the numbers remain constant. Yes, when you reverse the number, it should be the same number. यानी अगर मैंने लिया 121, 120 का रिवर्स भी 121 ही, वो मेरा पैलिंड्रोम। मुझे 3 डिजिट के लिए चाहिए, 4 डिजिट का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, 2 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, 22 भी नहीं चलेगा और 444 भी नहीं चलेगा, मुझे 3 डिजिट के लिए यानी बिटवीन 100 to 999 वाले नंबर चाहिए। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दैट विल टेक इज accept integer and check whether it is a single digit number. Accept integer and check whether it is a single digit integer. कितने single digit integer होते हैं आपके पास? 10 0 Very good. कितने? टोटल 10 0 to 9। Wrong. सोचो जरा ध्यान से, इतना सिंपल होता तो मैं क्वेश्चन नहीं देता आपको, ठीक है। Accept a single digit integer and check whether it is odd or even. हाँ सॉरी, odd or even नहीं, क्या कहा मैंने? नो सिंगल डिजिट। No, no. Accept an integer. सर सिंगल डिजिट नहीं कहते। क्या कहूँ क्या करें क्या करूँ, क्या क्वेश्चन क्या दिया मैंने पहले, क्या कहा था? Accept a single digit integer. एक्सेप्ट द 3-digit integer and check whether Hold on. सर तसं नाही सिंगल एक डिजिट। मिनट, let me repeat. integer and check whether Accept integer and check whether it is single digit integer. इंटीजर एक्सेप्ट करो और मुझे बताइए ये सिंगल डिजिट इंटीजर है या नहीं। सर रिपीट कीजिए ना। एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज अ सिंगल डिजिट इंटीजर। यानी मैंने 99 कहा तो बोला है इट्स नॉट अ सिंगल डिजिट, और 9 कहा तो बोला है इट्स अ सिंगल डिजिट इंटीजर। एक्सेप्ट इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज सिंगल डिजिट, यानी इंटीजर एक्सेप्ट करो और चेक करके बताइए ये सिंगल डिजिट इंटीजर है या नहीं है। सर 19 सिंगल डिजिट हो गए ना, वो माइनस वाले भी हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। 19 सिंगल डिजिट इंटीजर है, फ्रॉम -1 -9 टू +9, 19 सिंगल डिजिट इंटीजर है। 9 10 नहीं 19 है, -9 भी सिंगल डिजिट है, -8 भी सिंगल डिजिट है, और 2 सिंगल डिजिट। तो जब भी आप इंटीजर एक्सेप्ट करोगे चेक करना आपको ये सिंगल डिजिट है कि नहीं है। ओके, वेरी गुड। जरा सोचिए कंडीशंस क्या रहेगी, कैसे करोगे आंसर। सो विद दैट नोट वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग इनटू दिस स्मॉल थिंग्स। मैं चाहता हूँ कि आप है ना अभी से ऐसी सोच रखें, व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस सिंपल एग्जांपल्स टू सच अ डिटेल, बिकॉज आई वांट टू ग्रूम यू इन सच अ फैशन कि आपकी सोच वैसी बने कि कोई भी लिखा थोड़ा बहुत रन कर गया नहीं, यू विल नाउ बी टेस्टिंग, और सारे सिनारियो से चेक करोगे ऐसा भी चलेगा क्या, ऐसा भी चलेगा। यू विल फोकस टू मच ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एंड देन यू विल टेस्ट योर कोड कि इज इट फुलफिलिंग दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कंप्लीटली और नॉट। So to write such kind of programs, you have to have a different approach, and that is what I'm trying to inculcate you. तो उसके लिए आपको साथ देना होगा, असाइनमेंट सॉल्व करने होंगे, मैंने जो नोट लिखने के लिए कहा है वो लिखना होगा, रेगुलर सेशन कराना होगा, एंड अगर आओगे पार्टिसिपेट करोगे अननोइंगली ये हैबिट आप में बिल्ड हो जाएगी, एंड एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट व्हेन दे सी योर कोड।
because आपका कोड बाकी दोनों से अलग रहेगा, because you have anticipated all the situations where it can fail. People only write about situation where it will succeed, and they don't bother about situation where it fails, and so that code keeps on being rejected every now and then by the testers. मैं नहीं चाहता आपका कोड कोई रिजेक्ट करे. Okay. So with that note, we stop here today. When we meet next time, we'll discuss few more examples of if else. आपको लगेगा कब खत्म होगा? छोड़ूंगा नहीं आपको जब तक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. Take care. Love you all. Bye bye.